Good morning, students. Let us see how to create the posture. I have given you brief about the posture design, what is the commercial posture, what is the social posture. Now let's see how you can create the posture. What all the important elements of the posture I have explained you. The background of the sheet, okay, that's very important part which you people missed. And the image. Third, the slogan. Fourth, the sponsor of that posture means who is sponsoring that posture. Is it related to the education? Education ministry is doing it. Is it related to the railway ministry is doing it, or it's related to the health? Basically we create the posture for the health. Whatever the competition is coming for you people, you have to create the posture related to the health. How to be healthy, what is the healthy food, and how to remain healthy. Okay, but I am not explaining you that topic. I am just giving you normal idea what is the posture, because when I see the entries of the competition, you have done amazing job, no doubt. You all have drawn beautifully, you have created the tagline also, but sorry to say that all are copied from internet. It's very painful for me when I see same drawings of 10 students. I come to know that it is copied from somewhere, because I have not drawn that in my class. So from where you get that drawing, na? You must have copied from internet, because you don't aware about the posture. Especially my 11-12 student, they are not aware about the posture design, and you are going to draw the posture in the competition, and you are painting, sending me painting. It's very tough for me to choose the painting. Okay, so remember, the posture design is having some typographical skills, as well as the image is important, very important role played by the image. And don't forget to color the background. Okay, right now I am showing you few example to make the posture. Not about that topic, I am telling you how to create the normal postures. Okay, और पोस्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ पर है डोनेट ब्लड. देखिए आप, यहाँ पर एक ड्रॉप बनाई गई है ना, और लिखा हुआ डोनेट ब्लड, और ब्रिज बनाया गया है. यानी आप अगर ब्लड डोनेट करते हो तो आप इस ज़िंदगी और मृत्यु के ब्रिज को क्रॉस कर सकते हो. यानी इफ़ एनीवन इज़ रिक्वायर्ड अ ब्लड इन एमरजेंसी, राइट, वो बेचारा वैसे ही बीमार है, उसकी फैमिली वैसे ही परेशान है, अगर आपने उसको ब्लड डोनेट कर रखा है पहले और उसने वो यूज़ कर लिया, तो ही कैन सेव हिज और हर नियर बाय, है ना, अपने नियर डियर को वो बचा सकता है. वी नीड ईच अदर. ये देखिए, ये टैगलाइन भी अलग से कलर फिल करके एक टैगलाइन लिखी है, वी नीड ईच अदर. हमें एक दूसरे की ज़रूरत है. होपफुली इफ़ आई एम हैविंग ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, समवन नीड इट, है ना. मेरी फैमिली में बाकियों का ए पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन किसी और को चाहिए, तो जो मेरी फैमिली में ब्लड ग्रुप है वो मे भी उस फैमिली में ब्लड ग्रुप, और वो हम आपस में एक्सचेंज कर अपनी फैमिली मेम्बर को सेव कर सके. राइट, होप आपको पोस्टर डिज़ाइन थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा. अभी थोड़े बहुत और एग्जांपल हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी. ये देखिए, बैकग्राउंड में एक इमेज है ना, फोटोग्राफ है. यही चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, आप कोलाज बना सकते हो, फोटोग्राफ ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. आपको क्रिएटिवली उसको प्लेस करना है. देखो, ग्रीनरी है, जंगल में एक ये बियर है जो खड़ा है. ही इज़ नॉट हैप्पी, फेस एक्सप्रेशन इसके दिखा रहे हैं, ही इज़ नॉट हैप्पी. वाई? सेव रेन फॉरेस्ट सेव मी. मतलब कि आप अगर जंगल बचाओगे तभी मैं बच पाऊँगा, क्योंकि फॉरेस्ट इज़ देयर होम. होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. नाउ कम्स टू वन मोर पोस्चर, कंजर्वेशन, कंजर्व वाटर नाउ, सेव फ्यूचर. एक अम्ब्रेला दिखाइए. आपने नोट करा होगा, वाई वी यूज़ द अम्ब्रेला इन रेनी डेज, वी यूज़ द अम्ब्रेला, राइट, टू सेव आवर क्लोथ्स और आवर सेल्फ फ्रॉम वाटर. ठीक है, अब इसने अम्ब्रेला को ही उल्टा कर दी है कि ये पानी की बूंदों को ही बचा लो.
जितने भी पोस्टर होते हैं ना बेटा, उसमें कॉन्सेप्ट और थीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. देन कम्स द लाइन. अगर इसमें लाइन ना हो तब भी ये बता रहा है, ड्राइंग बता रही है इटसेल्फ कि हमें वाटर को सेव करना है. ओके ये खाली टाइपोग्राफिकली बेस्ड पोस्टर है जिसमें बैकग्राउंड में प्लेन कलर किया गया है और टेक्स्ट लिखा गया है. राइट. होप आपको पोस्टर डिज़ाइन क्लियर हुआ होगा. थोड़ा बहुत आपको अवेयरनेस आई होगी कि व्हाट इज़ द पोस्टर डिज़ाइन, आपको कॉम्पिटिशन्स में क्या करना होता है. मैंने आपको अपनी अर्लियर वीडियोस में बैकग्राउंड क्रिएट करने सिखाए थे. देखो है ना, बैकग्राउंड क्रिएट करने सिखाए थे. क्यों सिखाए थे, इसके पीछे भी रीज़न यही है. जब आप पोस्टर डिज़ाइन करते हो आप बिल्कुल ब्लैंक पेज छोड़ देते हो. अगर आपको आउटडोर में पोस्टर प्लेस करना है, अगर बैकग्राउंड अट्रैक्टिव है तभी तो कोई रुकेगा उसको देखने के लिए कि अचानक से नॉर्मल स्काई या ट्री के बीच में से ही अचानक से ये क्या आ गया कलरफुल. आप खुद देखिए, आप अगर स्कूल में कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कलरफुल चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं कि नहीं करती. आप रुक कर देखते हो. जैसे ये मैंने एक बैकग्राउंड क्रिएट करा था, आपको क्रिएट करना भी बताया था. ये बैकग्राउंड कैसे क्रिएट किया जाता है. ये नॉर्मल कलर मिक्सिंग का बैकग्राउंड क्रिएट करा था. राइट. अब बताओ अगर इसके ऊपर, इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं कुछ भी एक छोटा सा ही रेड कलर का या येलो कलर का स्टिकर, फॉर एग्जांपल वाइट कलर से भी लिख देती हूँ तो इट विजिबल. अब देखो अगर मैं इसके ऊपर एक छोटा सा येलो कलर का ही डॉट लगा देती हूँ, क्या आपको ये इजीली विजिबल है? क्या आप इसे मिस करोगे इस डॉट को पूरी शीट में? आई डोंट थिंक सो. और यही अगर मैं सेम स्टिकर आई एम पुटिंग इन दिस शीट, बताइए डज दिस येलो स्पॉट मैटर्स? क्या वो आपको दिख रहा है येलो स्पॉट? ऐसे ही जब हमें टाइपोग्राफी लेनी होती है, किसी भी बैकग्राउंड में हमें कुछ लिखना होता है तो हम अट्रैक्टिव कलर से ही ऑलवेज लिखते हैं. ओके अभी मैंने आपको एक डॉट लगा कर दिखाया है. अभी मैं आपको इसी में ही एक कैलीग्राफी या क्राफ्ट एक्टिविटी या कुछ ऐसा लिख कर दिखाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ में आएगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइपोग्राफी. दैट इज़ वाई डियर आई हैव शेयर द वीडियोज़ रिगार्डिंग द टाइपोग्राफी ऑल्सो. जब आपको पोस्टर बनाना हो टाइपोग्राफी प्लेज वेरी इम्पॉर्टेंट रोल.